Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Hope you are doing fine. Well, our today's lesson is tribes, nomads, and settled communities. You saw in chapters 2, 3, and 4 how kingdoms rose and fell. Even as this was happening, new arts, crafts, and production activities flourished in towns and villages. Over the centuries, important political, social, and economic developments had taken place. But social change was not the same everywhere because different kinds of societies evolved differently. It's important to understand how and why this happened. In large parts of the subcontinent, society was already divided according to the rules of Varna. These rules, as prescribed by the Brahmanas, were accepted by the rulers of large kingdoms. The difference between the high and low, and between the rich and poor, increased. Under the Delhi Sultans and the Mughals, this hierarchy between social classes grew further. Beyond big cities, tribal societies. Now, there were, however, other kinds of societies as well. Many societies in the subcontinent did not follow the social rules and rituals prescribed by the Brahmins, nor were they divided into numerous unequal classes. Such societies are often called tribes. Members of each tribe were united by kinship bonds. Many tribes obtained their livelihood from agriculture. Others were hunter-gatherers or herders. Most often, they combined these activities to make full use of the natural resources of the area in which they lived. Some tribes were nomadic and moved from one place to another. A tribal group controlled land and pastures jointly and divided these amongst households according to its own rules. Many large tribes thrived in different parts of the subcontinent. They usually lived in forests, hills, deserts, and places difficult to reach. Sometimes they clashed with the more powerful caste-based societies. In various ways, the tribes retained their freedom and preserved their separate culture. But the caste-based and tribal societies also depended on each other for their diverse needs. This relationship of conflict and dependence gradually caused both societies to change. So, this is about the tribal life. जैसा कि आपने देखा कि यहाँ जो सोसाइटी थी सब कॉन्टिनेंट में, ये डिवाइडेड सोसाइटी थी. इसके रूल्स बनाए गए थे, ब्राह्मणों ने इनके रूल्स बनाए थे, वरना तो उसी के तहत, उन्हीं रूल्स के तहत ये सोसाइटी जो थी मुख्तलिफ तबकों में ये बटी हुई थी. जैसे हाई एंड लो, कुछ लो कास्ट के थे, कुछ हाई कास्ट के थे, ये दो तबके अलग अलग थे. इसी तरह रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब. लेकिन कुछ ऐसी सोसाइटीज भी थी जो ट्राइबल सोसाइटीज थी, जो इन रूल्स को नहीं मानती थी. वो इन रूल से अलग थलग अपनी दुनिया अलग बसाई हुई थी. Many societies in the subcontinent did not follow the
social rules and rituals prescribed by the brahmanas. तो ये जो सोसाइटीज थी इनको हम ट्राइब्स कहते हैं, कबीले जो है ट्राइब्स। तो ये सोसाइटीज जो थी इनको हम ट्राइब्स कहते हैं। तो ये ट्राइब्स जो थे ये आपस में ब्लड रिलेशन और किनशिप बॉन्ड्स के तहत एक दूसरे के साथ रहते थे, इकट्ठे रहते थे। और अक्सर इनमें हंटर गैदरर्स थे और हर्डर्स थे, और ये रहते थे हिली इलाकों में और डेजर्ट्स में, और ऐसे इलाकों में जहाँ पहुँचना जो दुश्वार गुजार इलाके थे, ऐसे इलाकों में ये अक्सर रहा करते थे। तो वहाँ का जो वहाँ की पास्चर्स थी और वहाँ का जो एरिया था उस पर उनका कंट्रोल हुआ करता था। तो वहाँ ये जॉइंटली जो कुछ भी इनके रिसोर्सेज होते थे उनका जॉइंटली इस पर नेचुरल रिसोर्सेज पे इनका कंट्रोल होता था, और फिर ये इकट्ठे रहते थे और आपस में मिल बांट के वो उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते थे, अपने रूल्स के मुताबिक वो रहते थे और अपने रूल्स और रिचुअल्स के मुताबिक वो इन चीज़ों को बांटते थे। बहुत से बड़े बड़े ट्राइब्स जो थे वो सब कॉन्टिनेंट के मुख्तलिफ हिस्सों में रहा करते थे। तो ये फॉरेस्ट्स, हिल्स, डेजर्ट्स और ऐसी जो मुश्किल और दुश्वार गुजार इलाके थे उनमें ये रहा करते थे। तो कभी कभी इनको क्लैशेस भी होते थे। ये जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ थी इनके और ट्राइबल सोसाइटीज़ के दरमियान कभी कभी क्लैशेस भी होते थे आपस में। लेकिन ये जो ट्राइबल लोग थे ये अपनी जो इनकी ये पहचान थी, अपना कल्चर था, इसको ये प्रिजर्व किए हुए थे और अपनी इनके जो रिचुअल्स थे और इनकी जो ज़ुबान थी और इनके जो अपनी वो तौर तरीके थे उनको ये किसी न किसी तरीके से प्रिजर्व करते थे। लेकिन कभी कभी इनका ये जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ थी इनके साथ क्लैशेस भी होते थे, लेकिन एक दूसरे के साथ ये कभी कभी इनको डिपेंडेंट भी थे एक दूसरे पर। कभी कभी ज़रूरत भी पड़ती थी एक दूसरे की, इनको उनकी ज़रूरत पड़ती थी। कभी ट्राइबल सोसाइटी जो थी इनको ये कास्ट बेस्ड सोसाइटी वालों की ज़रूरत पड़ती थी, या इसी तरह इन लोगों को भी कबीले वालों की ज़रूरत पड़ती थी। तो इस तरह से आपस में एक ताल्लुक़ भी हुआ करता था, जिस तरह से इनको अपना जो बिहेवियर था इसमें कुछ चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता लानी पड़ी, कुछ तब्दीली भी लानी पड़ी। अब ये ट्राइबल लोग जो थे ये थे कौन? हु वर द ट्राइबल पीपल? So let's see who were the tribal people. Contemporary historians and travelers give very scanty information about tribes. ये जो historians हैं इन्होंने इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी है, scanty information दी है। तो a few exceptions apart, tribal people did not keep written records, क्योंकि इनके पास कोई written record था ही नहीं। ट्राइबल पीपल जो थे ये written कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे। बट दे प्रिजर्व्ड रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशंस। अपना जो इनका जो कस्टम्स थे, इनकी जो रिवायात थी, इनको ये प्रिजर्व किए हुए थे और ये ऑरली उनकी ट्रेडिशंस जो थी उनको प्रिजर्व किए हुए थे। ये वो अपनी लोक कथाओं के ज़रिए अपनी ये हिस्ट्री या अपनी पहचान को बनाए हुए थे। उनको ये एक दूसरे तक, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उसको ये मुंतकिल करते थे। These were passed down to each new generation. Present day historians have started using such oral traditions to write tribal histories. Okay. Now, tribal people were found in almost every region of the subcontinent. हर जगह जो सबकॉन्टिनेंट का कोई भी रीजन आप देखें तो वहाँ पे ट्राइबल जो सोसाइटी के लोग हैं ये पाए जाते थे। The area and influence of a tribe varied at different points of time. Some powerful tribes controlled large territories. In Punjab, the Khokhar tribe was very influential during the
13th and 14th centuries। पंजाब में जो कबीला ताकतवर था, जो ट्राइब ताकतवर था, इन्फ्लुएंशियल था, वो था खोखर। तो ये 13वीं और 14वीं सदी में इनका वहाँ पे जोर था, इन्फ्लुएंस था। लेटर द गखड़स बिकेम मोर इम्पोर्टेंट। देयर चीफ कमाल खान गखड़ वाज मेड ए नोबल और मनसबदार बाय एम्परर अकबर। ये पॉइंट नोट करने के लायक है कि उनका जो चीफ था, गखड़ कबीले का चीफ, उसका नाम था कमाल खान, गखड़ उनका नाम था। तो उनको अकबर ने मनसबदार बनाया था, एम्परर अकबर ने उनको मनसबदार बनाया था, क्योंकि इन्फ्लुएंशियल कबीला था उस दिन, तो इसलिए उनको अकबर ने अपना मनसबदार बनाया था। ये पंजाब में था गखड़ ट्राइब। इन मुल्तान एंड सिंध द लुगन्स एंड अरगुन्स dominated extensive regions before they were subdued by the मुगल्स। ये सिंध और मुल्तान में जो कबीले थे, लुगन्स और अरगुन्स। द बलोचीज were another large and powerful tribe in the north east। बलोची ये नॉर्थ ईस्ट में थे। They were divided into many smaller clans under different chiefs। ये बलोची जो थे, इनके बहुत से क्लान्स थे, अलग अलग क्लान्स इनके थे, अलग अलग इनके कबीले थे बलोचियों के। क्लान कहते हैं कि क्लान मीन्स ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस होल्ड्स क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन बेस्ड ऑन किनशिप और क्लान लॉयल्टीज। ठीक है ना, जिनका एक ही वो परदादा होता था, वो उसको बहुत सी कुछ 8-10 फैमिलीज होती थी या ज़्यादा, उनकी फैमिली जितनी भी हों, तो उनका जब एक ही एंसेस्टर हो तो उसको क्लान कहते हैं। तो इसी तरह ये बलोची जो थे, दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लान्स अंडर डिफरेंट चीफ्स। तो इनका अपना अपना चीफ था। ये नॉर्थ वेस्ट में थे। अच्छा, इन द वेस्टर्न हिमालय लिव्ड द शेफर्ड ट्राइब ऑफ गड्डीज। हिमालय के वेस्टर्न जो हिमालयाज हैं, वहाँ जो ट्राइब्स रहते थे उनको गड्डीज कहते थे। वो शेफर्ड थे, उनको गड्डीज कहते थे। The distant northeastern part of the subcontinent too was entirely dominated by the tribes, the Nagas, Ahom's and many others। ये जो आप देख रहे हैं डिस्टेंट नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है सब कॉन्टिनेंट का, तो वहाँ नागा कबीले थे, अहमस थे और बाकी कबीले भी थे, वहाँ ये लोग रहा करते थे और आज भी हैं। इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड, चिरू chieftains had emerged by the 12th century। ठीक है, झारखंड और बिहार में यहाँ चीरू कबीले रहा करते थे। राजा मान सिंह, अकबर्स फेमस जनरल, अटैक्ड एंड डिफीटेड द चीरू इन 1591। राजा मान सिंह जो अकबर का जनरल था, तो उसने 1591 में यहाँ पे इन पे अटैक किया और इनको डिफीट करके इनको अपने साथ मिला लिया। ठीक है, सबड्यू किया इनको। A large amount of booty was taken from them, but they were not entirely subdued। मुकम्मल तौर पे इनको सबड्यू नहीं किया गया। Under Aurangzeb, Mughal forces captured many Chiru fortresses and subdued the tribe। ये बाद में औरंगजेब ने इनको दोबारा इनके खिलाफ ये मिलिट्री एक्शन किया और फिर इनको सबड्यू किया। The Mundas and Santhals were among the other important tribes that lived in this region and also in Odisha and Bengal। Mundas and Santhals ये दो कबीलों के नाम हैं। तो ये लोग भी यहाँ रहते थे, उड़ीसा और बंगाल में, इन इलाकों में रहा करते थे। The Maharashtra Highlands and Karnataka were home to Kolis। Maharashtra Highlands and Karnataka, they were home to Kolis, Birards and numerous others। ये लोग यहाँ पे रहा करते थे, Kolis, Birards and others। Kolis also lived in many areas of Gujarat as well। Kolis गुजरात में भी रहा करते थे। Further south, there were large tribal populations of Koragas
विटार्स, मारवाड़्स एंड मैनी अदर्स। ये साउथ इंडिया में रहते थे। कोरागास, विटार्स, मारवाड़्स एंड मैनी अदर्स। The large tribes of Bhils were spread across western and central India. Western and central India. यहाँ पे जो था एक बड़ा कबीला रहता था, एक बड़ा ट्राइब रहता था, उसको भील कहते हैं। भील ये लोग रहा करते थे वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में, ये फैले हुए थे इस इलाके में। By the late 16th century, many of them had become settled agriculturists and some even zamindars. तो 16वीं सदी तक इनमें से बहुत से लोग क्या बन गए थे? सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट्स, जो खेती बाड़ी करते थे और एक जगह रहते थे, और इनमें कुछ लोग जमींदार भी बन गए थे, लैंडलॉर्ड। Many Bhil clans nevertheless remained हंटर गैदरर्स, लेकिन बहुत सारे इनमें अभी भी क्या थे? हंटर गैदरर्स थे, नोमैड्स थे। The Gonds were found in great numbers across the present day states of छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। तो इन इलाकों में या इन स्टेट्स में जो कबीले रहते थे वो थे गोंड्स। तो ये मुख्तलिफ कबीलों के बारे में आपको बता दिया गया, डिफरेंट ट्राइब्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। So now we will, in our next video, we will read about how nomads and mobile people lived. So today we conclude it here. With this I take your leave. Thank you very much.